سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے۔ علامہ مدن پوری کے کلام کے شعر کی وضاحت ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں کافی دنوں سے اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، نبی پر ایمان لے آؤ، نبی کا کلمہ پڑھو، لیکن یا رسول اللہ میری والدہ انکار کرتی ہے۔ یا رسول اللہ آج میں نے بڑی سختی کے ساتھ اپنی والدہ سے بات کی کہ محمد عربی کی عظمتوں کے چرچے دنیا کر رہی ہے، بیگانے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تم تو ابو ہریرہ کی ماں ہو، تمہارا بیٹا محمد کا ساتھی ہے، تمہارا بیٹا محمد کا غلام ہے، تمہارا بیٹا محمد کا خادم ہے۔ اے والدہ، جب لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا محمد کا غلام ہے اور ماں محمد کی دشمن ہے تو تیرے بیٹے کے سینے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اے والدہ، ایسا کر کہ تو یا تو نبی پر ایمان لے آ، اگر ایمان نہیں لائی تو تیرا بیٹا گھر سے نکل جائے گا۔ ابو ہریرہ کی ماں کہتی ہے کہ جا، تجھے جو کرنا ہے کر، تیری ماں محمد کو کبھی اللہ کا نبی نہیں مانے گی، کبھی نبی کے بتائے طریقے پر عمل نہیں کرے گی۔ آنکھیں بھر گئی صحابی رسول کی، ماں کے دامن کو چھوڑا، نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا یا رسول اللہ، غلام ہار گیا۔ ماں کو مناتے مناتے سرکار ایمان کی کشتی مجدار کی مجدار میں رہ گئی۔ اب تمام سارے ختم ہو گئے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے گا ابو ہریرہ کی ماں پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی نے اتنا سنا، ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں نبیوں کے نبی نے دعا کی۔ اللہ کے نبی نے دعا کرنے کے بعد ابو ہریرہ سے کہا جا اپنی والدہ کے پاس چلا جا۔ ابو ہریرہ گھر آئے، دروازہ کھولا، اندر گئے تو ماں نہا دھو کر تیار تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا اے والدہ، کل تک تو آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، کل تک تو آپ کو ایسے پردے میں نہیں دیکھا، اے ماں آج کیا بات ہو گئی؟ کیا کہیں دعوت کا انتظام ہے؟ کیا کہیں اور جا رہی ہو؟ ابو ہریرہ کی ماں محبت سے اپنے بیٹے کو قریب بلاتی ہیں۔ رسولوں کے رسول کا وہ ساتھی، وہ غلام ابو ہریرہ اپنی والدہ کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد رب سے عرض کرتا ہے بتاؤ ماں کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا، جب سے تو نے کہا میں روز سوچا کرتی تھی نہ جانے کیا ہوا، جب سے تو گھر سے گیا دل کی دنیا کا عالم بدل گیا۔ نہا دھو کر پاکی حاصل کیے، جا محمد کو لے آ، تیری ماں محمد کے نبی ہونے کا اقرار کرے گی۔ کہ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے، ہاں سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے۔ اللہ کے نبی کافرہ کے مکان سے ٹیک لگائے، صدیق اکبر سے گفتگو فرما رہے تھے، اس نے جلن کے عالم میں نبی کو جب بات کرتے دیکھا تو دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر کے اڑانے پہ گئی، اوپر جا کر نبی کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں جبریل آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد آپ جس مکان سے اپنی پشت کو لگائے کھڑے ہیں، رب وعدہ فرماتا ہے کہ اس مکان کی پیٹھ پر جہنم کی آگ اپنے حرام فرما دی ہے۔ جب اس کافرہ نے اوپر سے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نبی کے قریب آئی، نبی کے چہرے کو نگاہ کر کے دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ بوڑھی ماں کہا یا رسول اللہ، کل تک میں آپ سے دامن کو چھڑانا چاہتی تھی، ارے آپ کی پشت انور کا یہ عالم کہ آپ کا پیر یا جسم میرے مکان سے لگ جائے تو نیچے تک جہنم سے آباد ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی زندگی تمام آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گی تو میرے مرتبے کا عالم ہوا۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتی جاتی تھی، کلمہ طیبہ پڑھتی جاتی تھی، میرے نبی کو دیکھ دیکھ کر اشک بہاتی جاتی تھی، اللہ کے نبی دعا کرتے جاتے تھے، ارے سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے، اور صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے، ابن مریم سے بہتر شفاعت میں، ابن مریم سے بہتر شفاعت میں، وہ تو
जंग हो, जिस जगह देखिएगा करबला की जंग क्यों ना हो, हजरत हुर की जिंदगी को अगर लोगे तो हुर भी यही कहते हुए नजर आएंगे। आवाज की करबला में हुसैन ने कहा, है कोई जो मोहम्मद के हक को पहचाने, है कोई जो अहले बैत की अजमत को जाने, है कोई जो मौला अली के हक होने का इकरार करे, है कोई ऐसा जो जहन्नम से जन्नत की तरफ आ जाए। हुर दौड़कर आका हुसैन के कदमों में आए। आने के बाद कहा सरकार अब तक गुमराही में था, अब आपके करीब आ गया हूँ, क्या मैं जन्नती हो गया, मेरे लिए क्या इनाम है? तो हुसैन ने कहा तू दुनिया और आखिरत में हुर है। और हुर कहते हैं अरबी लफ्ज में जो दुनिया और आखिरत की हर बला और वबा से आजाद हो जाए। को अल्लाह के नबी के नवासे ने देखा। यहाँ पर भी ये शेर अल्लामा अदीब ने एक शेर ने पूरी कायनात को पिरो दिया है। अल्लामा अदीब के शेर की तशरीह है कि जब हुर के चेहरे को हुसैन ने देखा तो हुर रोते हुए नजर आए। आका हुसैन ने उठाया, उठाने के बाद का हुर क्यों रो रहा है? कहा सरकार कल तक गुमराही में था, आज उजाले में आया हूँ तो मसरत के आंसू है। तो कहा क्या कहना चाहता है? तो हुर ने यही कहा था कि वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफा हाथ में, अपने अंजाम से दिल परेशान था, हरिद सियां फिरोज़े जज़ा हाथ में। बहुत कीमती शेर में रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह। कि नूर से तेरे तनवीर सुबह अज़ल, जब पैदा कायनात नहीं हुई थी उससे पहले भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद था। नबी के नूर की बरकत से अल्लाह ने दिन और रात को पैदा फरमाया। चमक और दमक नबी के नूर का सदका है। तो क्या कहा है मुअज़्ज़ज़ हदीब मकबूली ने कि नूर से तेरे तनवीर तकदीर के, अरे रिफ़अतों से अदीब अपनी तकदीर के बन गए ज़र्राए सिर पाए नबी, बन गए ज़र्राए सिर पाए नबी, खाक तैबा से वाबस्तगी क्या हुई, खाक तैबा से वाबस्तगी क्या हुई, आ गया अर्श का सिलसिला हाथ में, खाक तैबा से वाबस्तगी क्या हुई, आ गया अर्श का सिलसिला हाथ में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुल्लु मोमिनुन इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई हैं, अखुवत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। अखलाक़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिएगा। हम आज खुद को देखें और दूसरे को देखें। हमारी बस्ती में किसी चमकदार आदमी की अगर कोई खता हो जाए तो गली कूचों बाजारों चौराहों में उछाला जाता है। किसी इज्जतदार आदमी के ऊपर अगर कोई ब्लेम लगा दिया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से उसकी जहां तहां बदनामी की जाती है। ख्वाह वो बिल्डर हो, आलिम हो, हाफिज हो, तिजारत वाला हो,
ठेकेदार हो या किसी भी किस्म का ओहदे वाला हो, मदरसे मस्जिद किसी से भी कोई रिलेटेड हो, मिसाल के तौर पे जैसे अगर कभी महीने 2 महीने 1.5 महीने में अजान का वक्त लेट हो जाए तो कोई बात, या किसी मास्टर को स्कूल जाने में देरी हो जाए तब कोई बात, तो हमें आपको अख़ुबत नहीं रही, मोहब्बत नहीं रही, लेकिन किरदार मोहम्मद तो वो है मेरे प्यारे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मवेशियों को लेकर जा रहे थे, यानी जानवरों को लेकर जा रहे थे। एक यहूदी आया, आने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानवर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या मुझे यहाँ फरोख्त फरमाओगे, क्या आप मेरे हाथ पर इनको बै करोगे, बेचोगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ले जाकर तेरी मर्जी है तो। क्या सरकार मैं ले तो लेता, लेकिन जेब में मेरे कोई दामों दिरहम दीनार यानी कीमत रुपया पैसा ला लो बहुत जाओ हशम कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा आराम से ले जा, अगर ले जाना चाहता है घर से लाकर दे देना। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह ये मंजूर है। अल्लाह के नबी ने कीमत लगाई, उसने कीमत लगाई, सौदा पड़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तिजारत किया करते थे, वो तमाम जानवरों को लेकर अपने घर चला गया, ऊँटों को बांधना शुरू किया, बांध कर फारिग हुआ, लोग मिलने के लिए आते रहे। आने के बाद में तो लोगों से इतनी खुशियों में मगन हो गया वो कि बाद आए सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गया। लोगों ने पूछा इसकी कीमत, इसकी कीमत, इसकी कीमत, इसकी कीमत, ये अच्छा है वो अच्छा है। इसी में यानी कि 1 दिन 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन जब आया तो उसको ख्याल आया कि अल्लाह अकबर, मैंने नबियों के नबी से वादा किया था कि मैं अभी पैसे लेकर आ रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, आज मेरी जिंदगी खतरे में आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन ईमान वाला नहीं था वो भी जानता था कि एक मुसलमान, एक ईमान वाले की अजमत क्या है, अल्लाह के नबी का मर्तबा क्या है। यहाँ ईमान वाला ही ईमान वाले के पीछे पड़ा है, बस थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिल जाए, कैसे ना कैसे इसका पत्ता साफ करने की बिना पर कुछ ना कुछ क्यों मिल जाए। अरे वहां देख मेरे प्यारे, एक तरफ काफिर है, दूसरी तरफ नबियों का नबी है। काफिर को तीसरे दिन वादा याद आता है कि मैंने नबियों के नबी से वादा किया था, दौड़ कर गया, क्या जाने के बाद अंदर से जो भी था निकाला, निकालने के बाद रकम को गिना कि मुझे सरकार को इतना देना है। आया, आने के बाद तो देखा कि नबियों के नबी उसी जगह खड़े मुस्कुरा रहे हैं जहाँ से 3 दिन पहले वो यहूदी वादा करके गया। अल्लाह के नबी के करीब आकर अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था। अरे मेरे नबी की वफा का भी ये आलम था कि मेरे नबी अगर कहीं काम से जाया करते थे तो किसी दूसरे को वहाँ खड़ा करके जाया करते थे, क्या पता वादा करने वाला का वादा। इसीलिए तो कहा गया है हदीस में कि वादा हर हाल में वफा करो। 5 चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई तुम्हारे करीब लेकर आए तो कभी इनकार मत करो। नंबर 1 दावत, नंबर 2 तोहफा, नंबर 3 इल्म हासिल कराने के लिए औलाद, नंबर 4 वो चीज जो वो घर से मोहब्बत के साथ हदीये के बतौर तुम्हें देना चाहता है, नंबर 5 वो परदेश जाना चाहता है, अपने पूरे मकान या चाबी की कुंजी तुम्हारे साथ अमानत के बतौर रखना चाहता है। कभी इनकार मत करो। आज हम उसके काम आए हैं, कल वो हमारे काम आएगा। लेकिन देखा गया मेरे प्यारे जमाने में उल्टा हो रहा है। तीसरे दिन आया, बहुत रो रहा था, अल्लाह के नबी ने कहा रोने की कोई बात नहीं, इंसान है, खता हो जाती है, इंसान खता का पुतला है, क्योंकि कुरान में कहा गया है ना इन्नल इंसाने लफी खुस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। लेकिन अब नेकियां कमाना चाहते हो तो अल्लाह के नबी के करीब आओ, पूछा या रसूलल्लाह हम घाटे में है तो नेकियों की तरफ कैसे आएंगे? तो अल्लाह के नबी ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वही लोग अच्छे हैं जो नेक अमाल किया करते हैं। वैसे तो सब घाटे में है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, वैसे तो सब इंसान घाटे में है, नेकियां जो करते हैं बस वही नेक है। लेकिन यहाँ नेकियां उल्टी हो रही है। अल्लाह की बारगाह में आए तो बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ में हाथों को बांध कर कहे गए या रब्बल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। या बैठ कर तस्बीह पढ़ी रब के दायरे में, उसको याद किया, मस्जिद से बाहर निकले, अरे यार चटाई उल्टी थी, इतना नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भाई जितनी जिम्मेदारी इस कमेटी या इमाम की है उससे डबल जिम्मेदारी आप पर भी बनती है। इस मकान की इंसान है, सो जाया करता है, इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है जो सोएगा नहीं। सुन मेरे प्यारे, सबसे बड़ी अहमियत है अखलाक, किरदार। इंसान चुनो तो ऐसा चुनो, इंसान लाओ तो ऐसा लाओ कि जिसकी ईमान के हरारत को देखने के बाद ये महसूस हो के बाद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसके चेहरे पर ईमान का नूर नजर आ रहा है। वो मत चुनना कभी कि जिसको चुनने के बाद में पछताना पड़े, सोचना पड़े, रोना पड़े। एक आलिम के पास एक शख्स आया, आने के बाद पूछा कि यार तुम आलिम हो, बहुत अच्छे हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, लेकिन मैंने अपनी बस्ती के एक मुअज्जब, नमाजी, हाजी, इज्जतदार है जो, पंचायतें करता है जो,
लोगों के पास बैठता है, जिसके पास लोग आते हैं, जो कभी चौराहे पर मिलता है, कभी इज्जत के साथ वो चौराहे पर मिलता है, कभी इसके दरवाजे पे मिलता है, कभी उसके दरवाजे पे मिलता है, वो आदमी मेरी नजरों में मोतबर है। लेकिन आलिम साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछूंगा मैंने इतने अच्छे आदमी को जो अल्लाह के घर के करीब रहता है, जगह ब जगह आपकी बुराई करते सुना, क्या कहो आलिम साहब से कि वो इतना अच्छा आदमी है, लेकिन जगह ब जगह मैंने आपकी उसको बुराई यानी उसको आपकी बुराई करते सुना है। तो आलिम साहब मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि अक्ल नहीं रखते अपने अंदर। तो उस पूछने वाले ने यानी झुंझलाकर पूछा, आलिम साहब ये कोई सवाल है यार, मैंने आपसे कहा आप कहते हैं अक्ल है, क्यों है तू कह रहा है कितना मोतबर आदमी, अरे तो मेरी बात ये बता चुगलखोर मोतबर कब से हो गया, ये बता जो बुराई करने वाला है वो सच्चा कैसे हो गया। तो अखलाक मर गया हमारा, ज़मीर बेच दिया हमने। एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, पहले इज्जत बिकी नियार, फिर किरदार बिका, तब कहीं जाके मेरे शहर में अखबार बिका। खुद को बदलो, हम जो बिखरे हैं जमाने में ये तिनकों की तरह, एक हो जाए जमाने को हिला कर रखते। किसके बलबूते से आज हमारे ऊपर तबाही आई, हनी ने अपने दुश्मनों को अपना घर दिखाया, न किसकी जुर्रत थी जो हमारी बस्तियों में कदम रख देते रहे। पहले देखो कहीं 72 से 22,000 डरे हैं, कहीं 313 से 10,000 डरे हैं। ये जुर्रत रही है, हिम्मत रही है। हमारा ज़मीर मर गया, अखलाक मर गया, हमारा दिल कहीं है, ज़हन कहीं है, दिमाग कहीं है, कुछ नहीं सोचा करते हम। अरे किरदार नबी तो वो किरदार है, हज़रत सलाम जो यहूदी हैं, याद आ गया फिर एक वाकया। हज़रत सलाम जो यहूदी हैं, उस वक्त आपका पूरा नाम नहीं लिया जाता था, अल्लाह के नबी ने नाम रखा जब आप ईमान वाले बने। आप यसरब में रहते थे, कहाँ? यसरब। यसरब कहते हैं मदीने को, मदीने का पहला नाम क्या है? यसरब। लेकिन जब से नबी गए इस चीज पर पाबंदी लगा दी गई कि बुला का कलम चलाया जाएगा, जो यसरब कहेगा उसके ऊपर। नबी जहाँ चला जाए वो माशअल्लाह का रहमत लिल आमीन। यसरब नहीं कह सकते, पहले यसरब कहते थे। यसरब उस जगह को कहते हैं जहाँ बलाएं रहती हैं, जो बलाओं का घर हुआ करता है, जिस जगह बलाएं डेरा जमाए हों। तो यसरब का रहने वाला एक सलाम नाम का शख्स था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पातशाही के डरके, आपकी अज़मतों के चर्चे उसने कहाँ सुने? मदीना तैयबा की सरजमीन जो यसरब था, वहाँ सुनने के बाद में अपने भाई को रवाना किया और कहा कि जा मक्के दौड़ कर जा, तेजी के साथ जाना, और लोगों ने जो कहा है क्या बात है इस नाम का शख्स कोई वहाँ मौजूद है, और पूछ कर आना और लोगों से किरदार उसका मालूम करके आना, और ये कहना कि वाकई क्या वो सच्चा है। आज तक वही मसला चल रहा है, इसलिए शरीयत कहती है कि पीर जब भी करो तो छान कर देखो, ऐसे ही नहीं, वही मसला चल रहा है। और सलाम ने भेजा, आने के बाद आपका भाई नबी की बारगाह में आए, आने के बाद में नबियों के नबी से मिले, लोगों से पूछा, पूछने के बाद में तमाम लोगों ने किरदार मोहम्मद, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप यानी कि दुनिया से परे हैं, आपकी तरह दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, न कभी आएगा, तमाम तारीफें सुनी। यसरब पहुंच गए, जाने के बाद में अल्लाह के नबी के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद में अल्लाह के नबी के करीब से यसरब पहुंचे, जाने के बाद में अपने भाई सलाम को सब बता दिया, वाकई मोहम्मद ऐसा है, वाकई मोहम्मद का नाम ऐसा है, मैंने मोहम्मद के चेहरे को देखा, मोहम्मद ऐसा है, वो तो लिबास ऐसा पहनता है, अमामा ऐसा पहनता है, किरदार ऐसा है, अखलाक ऐसा है, लोग अमीन कहते हैं, सादिक कहते हैं, सच्चा कहते हैं, मोतबर कहते हैं, बेहतरीन कहते हैं, तमाम जहान से अफजल वाला कहते हैं। सलाम ने सुना, दिल में इश्क रसूल पैदा हुआ, अपने असरब को छोड़कर मक्का आए, आने के बाद नबी की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका नाम तो मालूम नहीं, आपका घर तो मालूम नहीं, मदीने में कदम रखा करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका नाम नहीं जानता कि आपका पूरा नाम क्या है, मैं आपका खानदान नहीं जानता, आपका खानदान कौन सा है, मैं आपको नहीं देखा हूँ कभी, आपकी मुलाकात मुझसे कैसे होगी, मैं आपसे मिलूंगा कैसे। अब पूछते किसी ख्याल करते किसी से पूछ लूं कि मोहम्मद का पता बता दे, लेकिन दिल में ख्याल फिर आता है, और अगर किसी से पूछा तो मैं यहूदी हूँ, आज ये ना कहे क्या पता मोहम्मद की घात लगाए आया है, क्या पता मोहम्मद से दुश्मनी है, या मेरा कबीला मुझे कत्ल ना कर दे। अल-मुख्तसर ये मेरे प्यारे, वो शर्म की वजह से किसी से पूछ ना सके। हज़रत सलाम मक्के में गए, जाने के बाद जब तमाम लोग अपने अपने घर चले गए तो खाना काबा में जाकर बिस्तर लगाया एक साइड में और दीवार के करीब में सो गए, और रात का अंधेरा था। तो मौला अली की आदत थी कि रात में देखने आते थे कौन है कौन नहीं, कौन अपना है कौन बेगाना, कौन परेशान हाल है कौन यानी मसरत में है। अली आए तो आपने उस चेहरे को देखा तो अली समझ गए मेरी बस्ती का नहीं है, कोई मुसाफिर है। अली करीब गए, जाने के बाद
जब मैं उठाया, उठाने के बाद कहा लगता है आप मुसाफिर हो। कहा जी भाई मैं मुसाफिर हूँ। ना सलाम अली को जानते हैं और ना अली सलाम को जानते हैं, ना सलाम मोहम्मद को जानते हैं, ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा है। हज़रत अली ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ लेटने से बेहतर है मेरा मकान करीब में है, मेरे घर चलिएगा, आराम से मैं आपको सुलाऊंगा, बिस्तर दूंगा, खाना दूंगा। हज़रत सलाम ने भी कुछ नहीं कहा, सलाम की खामोशी के साथ मौला अली से चले गए। ना रात गुजरी, मौला अली ने भी कुछ नहीं पूछा, हज़रत सलाम ने भी कुछ ना बताया। इत्तेफाक से दूसरा दिन आया, दूसरे दिन आने के बाद में आपने फिर दिन भर तलाश किया, नबी मिल जाए, नबी मिल जाए, नबी मिल जाए, नबी मिल जाए, लेकिन फिर शर्म की वजह से और दुनिया की संदेशारों की वजह से किसी से इज़हार नहीं किया। अमा सुन, वहाँ तो अपनी मोहब्बत का इज़हार करने से भी इंसान डर रहा है। आज बुराई पर बुराई किया जा रहा है, कोई अफसोस नहीं। सलाम की जिंदगी को निगाह में रखो, अगर किरदार मोहम्मद समझ में ना आ जाए। अली दोबारा दूसरी रात में खाना काबा में पहुंचे, देखा तो हज़रत सलाम फिर दरवाजे से टेक लगाए, यानी दीवार के किनारे सो रहे हैं। हज़रत अली ने फिर उठाया, उठाने के बाद कहा भाई क्या हुआ, अभी मामला हल हुआ नहीं है? कहा नहीं, अभी मुझे नहीं मिल पाया है जो चीज़ मुझे चाहिए, अभी मैं उस चीज़ के करीब नहीं पहुंचा हूँ जिस चीज़ की मुझे तमन्ना यहाँ तक खींच कर लाई है, जिस चीज़ की हाजत ने मुझे बेगाना किया है, दीवाना किया है, वतन को छोड़ा है। अली ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह आपको बदल जरूर करम फरमाएगा, वो चीज़ भी मिल जाएगी, आप यहाँ मत सो, चलो मेरा घर करीब में है, आप फिर से मेरे घर चलिएगा। हज़रत अबू ज़र तारीख बदलाती है, हज़रत अबू ज़र बहुत अच्छी तरीके से बयान करते हैं कि हज़रत सलाम यानी अली के साथ फिर चले गए। हम मौला अली घर ले गए, ले जाने के बाद खाना खिलाया, बिस्तर पे बिठाया, उसके बाद प्यार से पूछा, क्या पूछा, तवज्जो रखिएगा। अली ने पूछा भाई 2 दिन हो गए, आप किस चीज़ की तलाश में आए हो, क्या आपको चाहिए, क्या वो चीज़ आपको अभी मिली नहीं? अगर मेरा कोई हल करने का मसला हो तो कुल्लू मोमिन लिखा, हम और आप आपस में भाई हैं, मोमिन मोमिन के होने के नाते से आप जब यहाँ तक आए हो तो आपको खाना काबा में जो चीज़ खींच कर लाई है कोई अच्छा इरादा ही होगा। इस वजह से अली ने कहा तो यानी कि हज़रत सलाम कहते हैं आए मेरे मेज़बान, मैं बता तो दूंगा लेकिन वादा यह करो कि मेरा राज किसी से कहोगे तुमने। अरे वादा तो सहाबा किराम में भी होते थे, आज कोई नए वादे नहीं है, वो तोड़ा नहीं करते थे, जान दे देते थे, आज जान बचा ली अपनी वादे तोड़ दिए, तमाम मसला उल्टा है। अली ने कहा ठीक है, ज़बान दी, जो कहोगे सीने में छुपा लूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। तो सलाम कहते हैं कि मैं यसरफ का रहने वाला हूँ, वहाँ से आया हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मैंने सुना था, किरदार सुना था, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मौला अली ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कहा किस लिए आए हो? कहा मैं मोमिन होने के लिए आया हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, कहा मैं कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ। अली ने कहा कोई बात नहीं, मैं मोहम्मद का बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ, सुबह खामोशी के साथ मोहम्मद का दीदार करा दिया जाए। सो गए बेटे, दोनों में वादे हुए। मौला अली सुबह उठे, उठने के बाद मुझे इबादत से फारिग हुए, हज़रत सलाम को उठाया, उठाने के बाद कहा कि चलो सरकार की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह के नबी के दरवाजे पे पहुंचे, नबियों के नबी ने इरशाद फरमाया अबू तालिब मेहमान को अंदर लेकर आजा, मोहम्मद इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला, हज़रत सलाम अंदर पहुंचे, नबी को देखा, देखने के बाद गिर गए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबने जो कुछ कहा सब झूठ कहा, मेरी समझ से परे था। सरकार किसी ने ये कहा आपकी आंखें ऐसी हैं, किसी ने कहा रुखसार ऐसे हैं, किसी ने कहा लब ऐसे हैं, किसी ने कहा बीनी ऐसी है, किसी ने कहा गोश ऐसे हैं, किसी ने कहा बाजू ऐसे हैं, किसी ने कहा कदर कामत ऐसा है। या रसूलुल्लाह जिसने कहा सब कुछ दिमाग से उतर गया। कहा क्यों? तो अल्लाह के नबी को देखकर सलाम कहते सरकार जब तक बिताना था तो कोई पूछता ना था, अब जुमले कहाँ है जो कहूँ। या रसूलुल्लाह जिसने जो कुछ कहा वो सब आपके कदमों के नीचे का कहा। अरे आप तो वो है कि आपकी तारीफ जमाने में कोई कर दे ऐसा कोई लाल माने पैदा ही नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ईमान ले आए। मक्के में जब आप ईमान लाए तो आप बहुत जोशीले थे। हज़रत सलाम जो मदीना यसरत के रहने वाले थे, मक्के में पहुंचे, जोर से पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी की कानों तक खबर आई तो लोगों ने यानी कि ये देखा कि जब इतना सुना तो पत्थरों से लोग मारने लगे, आप पर पत्थर बरसाए गए। हज़रत अब्बास आए, आने के बाद कहो लोगों तुम किसको मार रहे हो? यसरत की तरफ तुम तिजारत के लिए जाते हो तो यही उस कबीले का सरदार है जहाँ तुम्हारा माल खरीदा जाता है। लोग अपना हाथ पीछे खींच लिया, हज़रत सलाम बच गए। दूसरे दिन फिर आप ऐलान करने के लिए पहुंचे, फिर आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की सदाएं बुलंद की। फिर लोगों ने मारा, हज़रत अब्बास फिर बचा लाए। अल-मुक़्तसिम नबी की बारगाह में आए तो नबियों के नबी का इरादा क्या है? अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी हज़रतों के चर्चे करते करते मरना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत को जान देना चाहता हूँ। नबियों के नबी ने कहा वक्त की नज़ाकत है,
اس جملے پر غور دینا. نبیوں کے نبی نے کہا سلام وقت کی نزاکت ہے, ابھی لبوں کو کھولنے سے پرہیز کرو, اور حکم محمد ہے کہ اپنے وطن چلے جاؤ. کچھ دن کے بعد محمد خود مکے کو ہجرت کر کے, مکے سے ہجرت کر کے جب یثرب آ جائے گا, اپنے اعلان کے ساتھ میں جیسے بھی کرو پھر اسلام کی تبلیغ کرنا. ابھی آپ یہاں سے جاؤ, جانے کے بعد اپنے قریب کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرو تاکہ تم بھی آخرت میں یعنی سرخروئی حاصل کرو اور دین خدا کو ترقیاں عطا ہو. حضرت سلام نے آپ کی بات سنی, اب آپ شروع کر دیتے ہیں تیاریاں یثرب جانے کی. کہیں بتلاتی ہے میرے پیارے, نبیوں کے نبی نے جانے سے پہلے ارشاد فرمایا اے یثرب کے رہنے والے, کل تک تو کچھ اور تھا, تیرا نام کوئی اور تھا, آج جب یہاں آیا ہے تو محمد کا بھائی ہو گیا. بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ, کیسے تو نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا کلو مومنون اخوا, تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. جب اتنا سنا تو تڑپ کر رہ گئے. سلام عرض کرتی یا رسول اللہ, ارے اتنی محبت تو زمانے میں آج تک کسی نے نہیں دکھائی. آپ نے اتنا جملہ کہہ دیا, سرکار دنیا و آخرت بدل گئی. نبیوں کے نبی نے کہا گھر چلا جا, کچھ دن کے بعد محمد تیرے مکان پہ آئے گا, کچھ دن کے بعد محمد تیری دہلیز پر آئے گا, اور جانے سے پہلے محمد کے ہونٹوں کی نشانی لے جا. سلام عرض کرتے یا رسول اللہ کیا دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آج سے تیرا نام سلام نہیں, محمد اپنے جملے تو رہتا ہے. کیا آج سے تیرا نام محمد نے عبداللہ رکھ دیا, قیامت تک دنیا کو کہ اللہ کا بندہ کہہ کر عزت مل گئی, مرتبہ مل گیا. کلو محمد اخوا, کسی کی بھلائی کر کے تو دیکھو, کسی کی مصیبت میں ہاتھ بٹا کر تو دیکھو, انشاءاللہ زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. 2 منٹ ہیں حضرات میرے پاس, اور ان 2 منٹ میں میں آپ کو جو میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی وضاحت کے بطور کچھ دینا چاہتا ہوں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. کافی عرصے کے بعد میں الحمدللہ میں آج منتبت ستارے والا العالمین کے 2 شعر پڑھ رہا ہوں. محبت کے ساتھ سنیں, طلب کرتے ہیں سبحان اللہ. اس سخاوت میں بڑھ کر مدار جہاں ہے, سخاوت میں بڑھ کر مدار جہاں ہے. رب ایک ہی شروع پائے گا, سخاوت میں بڑھ کر مدار جہاں ہے, کہ آل پیمبر مدار